Welcome once again to our new video of accounting ratio, class 12, page number 4.31, illustration number 49. Okay, question is given as capital employed, current liabilities, fixed asset, accumulated depreciation, non-current investment, trade receivable. That means debtor plus debtor and bills receivables comes under it. Okay, here the capital employed, I will explain you. Here equity share capital, debentures, capital reserve, surplus, cash and cash equivalents. Okay, question asks us to find total asset to debt ratio. This question asks to us now how to solve it. It became a challenge, a lot of information given to us. So I must tell you some shortcuts. Remember one thing, as you know, already know the balance sheet format. This is the balance sheet format. Here what is there? Share, equity share capital, that means shareholder fund. What will come in the balance sheet? Here it will come shareholder fund, in shareholder fund what come? Equity share capital or preference share capital, general reserve, capital reserve, whatever comes under this. Okay? Here, then after long term debt, long term borrowings, long term debts. Here it will be long term borrowing, long term provisions comes under it. So if we will total this is under the liability side. So if we will add both of them, what will come? Capital employed. Together, what we can say to this term? Capital employed, that is capital employed given here. That means it includes equity share capital, general reserve and long-term debts. Clear to everyone? Okay? It must be known by you, otherwise you would not able to solve this question. Now, what we have to do? We have to find total asset to debt ratio. So, remember, for finding total asset to debt ratio, what is the formula? Total assets divided by long term debts. Which debts? Long term debts. Okay, here I will solve it. So first of all, what we have to do? We have to identify the assets from it, total assets. Okay, see this balance sheet. Here all the assets will come. Here the liabilities will come. Here the amounts will come. Here the total, overall total will be, what will be there? Total assets. So, that total asset include all the non-current assets, non-current investments, long-term loans and current assets. Together they are called total assets. So, this total asset we have to find out. So, how to find out the total assets? See here. First of all, identify which are the assets. Assets identify करना है हमें. तो सबसे पहले देख लेते हैं assets कौन सी identify होगी. चलिए. तो fixed asset is our asset. Accumulated depreciation. We all know, हम सब जानते हैं कि depreciation fixed asset में से माइनस होता है. That's why इसको क्या करेंगे? Fixed asset से माइनस कर देंगे, है ना? ठीक है. इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है हमारी एसेट्स है.
ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट है। ओके, इधर देखते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे क्या आते हैं? कैश, ड्राफ्ट, चेक्स, ये भी हमारी एसेट्स है। तो इनको हम क्या करेंगे? टोटल एसेट के अंदर ले लेंगे। चलिए देखते हैं। आई एम राइटिंग योर नोट नोट नंबर 1 फॉर फाइंडिंग आउट टोटल एसेट। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए, हाउ टू फाइंड आउट द टोटल एसेट? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल एसेट इंक्लूड करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। जो टोटल एसेट रहती है जो बैलेंस शीट के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है? करंट एसेट यहाँ पे आती है और नॉन करंट एसेट्स ये ऊपर आती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट मिल जाएगा। तो इसी निकालो। सबसे पहले करंट एसेट कौन कौन सी दे रखी है? कैश एंड कैश इक्विपमेंट करंट एसेट है हमारी, ठीक है। और कोई करंट एसेट दे रखी क्या? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्या निकालने के लिए? करंट एसेट निकालने के लिए। तो ये करंट एसेट इज इक्वल टू, सी हियर, ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश। तो कितना आ जाता है? 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना आ गया? 3,50,000, 4 लाख। So 4 lakh is what? Our current asset plus this is current asset 4 lakh. Now नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखते हैं। नॉन करंट एसेट, ये आई एम राइटिंग इट हियर, नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू, देखो, फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये ऐड होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कुछ यहाँ पे नहीं। हो गए सारे एसेट्स। तो देखो, फिक्स्ड एसेट कितना दे रखा है? 1,50,000, सॉरी 15 लाख। 15 लाख में से 2 लाख डेप्रिसिएशन चला जाएगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास में? 7 लाख है। इसे 7 लाख। तो टोटल देखो तो कितना आ जाए इसका? 15 लाख माइनस 2 लाख, 13 लाख। 13 लाख प्लस 7 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख इज अवर नॉन करंट एसेट्स। सो इधर देखेंगे तो 24 लाख हमारा क्या जाएगा? टोटल एसेट्स आ जाएगा। इधर लिख देंगे हम 24 लाख। आया सबको समझ में? हाउ टू फाइंड द टोटल एसेट्स? ओके, नाउ वी विल फाइंड द डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट तो फाइंड कर चुके हैं, पर लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है क्या हमें लॉन्ग टर्म डेट्स? देखो, अगर दे रखा हो तो डायरेक्ट लिख लेंगे। दे रखा है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दे रखे। यहाँ नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर फाइंडिंग इट आउट? वी हैव टू राइट हियर वर्किंग नोट, नोट नंबर 2। क्या निकालना है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेट निकालना है। अब लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए कोई क्लू मिल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ क्लू है हमारे पास में। देखो कौन कौन से क्लू है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं एक फॉर्मूला। देखो, ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको, इधर ध्यान दे सभी। शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट्स मिलकर क्या मिलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखा है, तो निकाल लेंगे इससे। लेट्स सी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। यही निकालना है हमें, लॉन्ग टर्म डेट्स।
तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, देखते हैं। वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में है। शेयर होल्डर फंड क्या हमारे पास में है? यस, शेयर होल्डर फंड इज आल्सो अवेलेबल, बट वी हैव टू एड देम। ओके, सो हाउ टू एड द शेयर होल्डर्स फंड? So, capital employed is equal to shareholder fund plus long-term debts. So, capital employed is given here 22,20,000. Shareholder fund is given to us. Let's see. Yes, it is a shareholder fund. Equity share capital, preference share capital, general reserve. So, here equity share capital, capital reserve given. अच्छा, profit, if only surplus is given, then it will be added, but when the debit surplus is given, it will be deducted. So here, see here, note. I am not writing note, directly I am writing shareholder fund. Shareholder funds. So shareholder funds, equity share capital plus capital reserve plus surplus. Okay, so 10,50,000. Capital reserve 2,40,000. ध्यान रहे, सरप्लस दिया है तो एड होगा, पर सरप्लस में अगर डेबिट दिया है, सरप्लस में डेबिट बैलेंस है, मतलब ये क्या होगा? माइनस होगा। ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो, कंफ्यूज ना हो। ओके, सो टोटल करेंगे शेयर होल्डर फंड्स का तो कितना आएगा? 10,50,000, 2,40,000 माइनस 30,000, कितना आएगा? 12,60,000, 12,60,000, यहाँ लिखना पड़ेगा 12,60,000 लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हमें निकालना है। तो अब क्या क्या बच गया? अच्छा, करंट लायबिलिटी आता है क्या इसमें? नहीं, इसके अंदर तो क्या आएगा? डेट्स में लॉन्ग टर्म डेट्स आएंगे, और ये क्या है? शॉर्ट टर्म डेट्स है, इसलिए ये करंट लायबिलिटी नहीं आएगा। अच्छा, एक बात हो, डिवेंचर, डिवेंचर को क्यों नहीं लिया? डिवेंचर इज आल्सो अवर लॉन्ग टर्म डेट, यहां लिख सकता हूं मैं उसको, डिवेंचर 8% डिवेंचर हमारे, ये भी लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आता है। फिर क्यों हमने अभी तक नहीं लिया? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म डेट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डिवेंचर रहेगा ना, ये जो निकलेगा उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 22,20,000 माइनस 12,60,000, कितना आएगा? 22 लाख में से 12,60,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,60,000। तो क्या आ गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट? 9,60,000। मीन्स 9,60,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और डिवेंचर्स। मतलब ये जो 3 लाख है ये ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए इसको अलग से नहीं लिया हमने। समझ में आया कि डिवेंचर्स क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो ये डेब्ट्स आ गई 9,60,000। इधर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट 2, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा? काटिए इसे, 2:5 डिवाइड बाय 1, सो दैट इज अवर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थोड़ा सा नया है, प्रैक्टिस इट वेल सो दैट इट विल कम टू इट विल बी कम इन योर हैबिट।